हज़रात, ये आप जो 11 मुहर्रम को लौटे हुए काफ़िले का जुलूस देख रहे हैं, ये जुलूस क्यों हो रहा है, कब से उठ रहा है, इसके बारे में मैं हाजी असगर हुसैन ज़ैदी साहब को आपके रूबरू करा रहा हूँ। वो इस बारे में बताएंगे ये जुलूस कब उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, कैसे उठ रहा है। आपके सामने हाजी असगर हुसैन ज़ैदी साहब। ये 11 मुहर्रम का जुलूस जो कि एक एजाजी और जुलूस है, इसमें 80,000 लोग इसको बच्चे एक मामूली से जुलूस को उठाया था और आज ये सिलसिला करीब 40 साल 50 साल से चल रहा है और ये बहुत कदीमी जुलूस हो गया है। इसमें बड़ी मेहनत पूरी होती है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसके जो मानी हैं वो वसी हसन और चंद और लोग जिनका नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, और मोहल्ले का ताउन भी है, शहर वालों का ताउन है, जमुना का ताउन है। ये बरसों से चल रहा है, 10-20 साल से चल रहा है। 11 मुहर्रम जुलूस जुड़े हुए काफिले के नाम से इसको कायम किया गया था। आज का सिलसिला बहुत बढ़ गया। शुक्रिया हाजी साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया हूँ इस जुलूस के बारे में जो कुछ बताया। आप हज़रात ये लाइव टेलीकास्ट जौनपुर.com की जानिब से देख रहे हैं, जिसको कलीम और ज़ैदी और उनके साथियों द्वारा नशर किया जा रहा है आपकी खिदमत में। 11 मुहर्रम का ये लुटे हुए काफ़िले का जुलूस जो अपनी रवायत के मुताबिक शाम में 4 बजे से उठकर इमाम बारगाह आज़ा खाना शेख मोहम्मद इस्लाम मरहूम और आज़ा खाना अमीर बहादुर अली दालान से होता हुआ ये इमाम बारगाह अकबर मरहूम तक जाएगा। अभी यहाँ पर एक तकरीर होगी, उसके बाद शबीह जुलजना से एक सुबत मिलाई जाएगी, बाद में ये अकबर मरहूम के जाकर ख़त्म होगा।
ہم بھرتے ہی گئے دارو رسم میں سکر مٹ گئے دیر سے خود ہم کو مٹانے والے ادادارہ نے امام مظلوم جتنی بھی مخالفت پڑھی دشمنی پڑھی وقت نہیں ہم عروج پاتے گئے پنپتے گئے تاریخ شاہد ہے کہ خاندان کا خاندان نسلوں کی نسلیں حکومتوں کی حکومتیں گھر کا گھر تباہ اور برباد ہو گیا من ذکر اہل بیت رکان اہل بیت کے چاہل بالوں میں کوئی کمی نہیں یہ سلسلہ دشمنی قدیم ہے اہل بیت سے دشمنی بعد میں ان کے چاہنے والوں سے دشمنی اور اب براہ راست یہ دشمنی اداداری سے ہے یاد رکھیے یہ اداداری سے دشمنی نہیں ہے براہ راست حسین سے دشمنی ہو رہی ہے اور حسین سے دشمنی کا مطلب کہ رسول سے دشمنی کا مطلب کہ خدا سے دشمنی اور خدا کے دشمن جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اداداری کے چھیڑچھاڑ نہیں ہے اداداری تو حسین کی ہو رہی ہے نا اور یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری کوششیں بیکار تھک کے مر جاؤ گے مگر اداداری ختم نہیں کر سکتے ایک بھی اداکار زندہ رہے گا تو اداداری ہوتی رہے گی تاریخ شاہد ہے بنی امیہ بنی عباس ایسے دن حکیم فتح سے ختم ہو گئی وہ دور بھی یاد ہے متوکل کا کہ جب اولاد کو اپنے قربان کر دے تب عذاب بچے گی تب حسن نہ کوئی روک سکے گا تو آج کا یزید کیا اداداری کو روک سکے گا یہ اداداری نہیں روک سکتی جتنی روک بڑھتی جائے گی اتنی بڑھتی جائے گی یہ مشاہدہ ہے آپ کا کل کتنے جلوس تھے آج کتنے جلوس ہو رہے ہیں کل کتنی مجلسیں تھیں آج کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اضافہ ہوا یا کمی ہوا آپ بتائیے مجلسوں میں اضافہ ہے یا کمی ہے جلوسوں میں اضافہ ہے یا کمی ہے اور مخالفت کی شدت بڑھتی جا رہی ہے فتوے نکلتے جا رہے ہیں پابندیاں بڑھتی جا رہی ہے ان کا کوئی اثر پڑ رہا ہے یا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے اداکاری بڑھتی جائے کیونکہ یہ مظلوم کا غم ہے اللہ کا وعدہ ہے یہ حسین تم نے میرے نام کو زندہ کیا ہے اگر میری ذمہ داری ہے میں تیرے تذکرے کو ہمیشہ برقرار رکھوں گا ہم پر جو اعتراض بہت ہوتے ہیں ایک اعتراض تو یہ گا کہ ہم سال کی ابتدا ہم سے مناتے ہیں اور دوسرا اعتراض جو بہت قدیم چلا آیا ہے یہ علم یہ تابوت یہ جھولے یہ سب بدعت ہے یہ کاغذ یہ کپڑے یہ بانس کی تیلیاں میں پوچھتا ہوں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سال کی ابتدا ہم سے مناتے ہیں دنیا کا مسلمان ہمیں جواب دے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب سے ہوا اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب سے ہے ہجرت ہجری سے ہے یا نہیں ہے اسلامی کیلنڈر ہجری سے بنا کیوں ہجری سے ہے کہ رسول نے دور میں ہجرت کی تھی اس ہجرت سے ہجری کا آغاز ہوا اسلامی کیلنڈر اب آپ انصاف سے بتائیے کہ ہجرت جب کوئی کرتا ہے وطن جو ہوتا ہے اسے غم ہوتا ہے یا خوشی اس کو غم ہوتا ہے خوشی نہیں ہوتی اور دوسری بات کہ ہجرت میں رسول کے ساتھ صحابہ بھی تھے حضرت ابوبکر بھی غار میں تھے ان کو ساتھ پا کر رونا خوشی کی علامت ہے یا غم کی نہیں مناتے
ईद हुई मुबारकबाद पेश करते, हम गम से मनाते हैं, हम रसूल को मानने वाले हैं। हिजरत हिजरी से बनी थी जो रसूल ने हिजरत की थी। दूसरा एतराज था किताब ये अलग क्यों उठते हैं, ताबूत क्यों उठते हैं, बांस की पीलियां हैं, ये कपड़े हैं, ये कागज है, उनको ये अहमियत नहीं मालूम। इसमें बहुत से अफराद हैं जो हज करने जाते हैं और कर आए हैं, कितने उद्यान और कितने जाएंगे। हज में आप चाहते हैं तो क्या करते हैं, शैतानों पर पत्थर मारते हैं नहीं, वो भी तो पत्थर का बना है, बड़ा शैतान, छोटा शैतान, मझला शैतान, यानी तीनों शैतानों पर आप पत्थर मारते हैं। जो घर मस्जिद का एहतराम हो, किसी घर का और एहतराम होता तो ये मंसूब है अल्लाह की जात से। तो ये कागज न देखो, ये कपड़े न देखो, ये बांस की नीलियां न देखो, देखो ये मंसूब कीजिए, ये अब्बास के नाम से मंसूब, अब्बास का आलम उठा रहे हैं, हुसैन का ताजिया रखते हैं, ये हुसैन का सुलझना है। तो ये बेकार की तरफ न करिए, ये इबादत है, इबादत। मसला ये है कि इतराज इसलिए हो रहा है ताकि हमारे गजाली पर जोश कम हो जाए, कि उनको को मातम से थकन, नजीरों से उलझन। असल में ये मातम नहीं है, बल्कि जालिमों और नजीरों के रुखसार पे भरपूर तमाशा है। बल्कि यजीदी ज़हन रखने वालों के जिगर पर खंजर का काम कर रहे हैं, ताकि ये मातम रोका जाए, आंसू रोक जाए, हमारे चेहरे बेनकाब न होने पाए। तो याद रखिए, जब सवालें बंद कर दी जाती है तो आंसू तारीख की जबान बन जाती है, आंसू तारीख की जबान बन जाती है, और ये आंसू सारे रात खोल देते हैं। अगर कोई यहाँ से हंसता हुआ आदमी जाए तो आप कभी न उससे पूछिएगा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्या वजह है। मगर कोई रोता हुआ जाएगा, फौरन हमदर्दी होगी, पूछोगे क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, किसने सताया है। जब वो बताएगा तुम्हें हमदर्दी, इसीलिए इनके आंसू को सीधा कहकर रोक दो, ये रोने न पाए, ताकि हमारा आय जो है वो छिपा रहे। कभी न रोते, कभी न माथा करते, अगर हदीस रसूल हमारे सामने न होती। ये आंसू का रवाज हमसे नहीं है। हज़रत रसूल से पूछिए, हमजा की मौत पर कैसे आंसू बहाए, चीखे मार के रोए। माँ की लाश पर कब्र पर पहुंचे तो अफाक भी साथ थे, उनके साथ अफाक भी रोए।
किसी सहाबी की हिम्मत नहीं, रसूल से ने पूछा, या रसूल खुदा रोना बिदअत है, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं, बल्कि उनके साथ आप क्यों रो रहे हैं? तो ये बिदअत तक से आंसू बन गया। बिदअत इसलिए बनाया कि जुल्म बेनकाब न होने पाए, अफगानियत छिपा दी जाए। हुसैन फातेह, हुसैन फतहिया, याद रखिएगा, ये जो लोग कहते हैं कि यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत। न यजीद मोर्चा जीता है न जंग जीता, दोनों हारा है। क्योंकि जो हारता है उसका तस्करा नहीं होता, जो जीतता है उसका तस्करा होता है। अगर कोई लड़का बेहतरीन नंबर से पास होता है, विकेशन पाता है मेरिट में, तो उसके वालिदैन भी खुश होते हैं, मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं, आइंदा भी खुश होते हैं, और उसका तस्करा बार बार किया जाता है। और वही अगर किसी लड़के का नंबर कम है तो उसका तस्करा नहीं, बल्कि वो भागता है, कहीं मेरा तस्करा कर लो दिया जाए, कहीं मेरा जिक्र कर लो दिया जाए, मुझे शर्मिंदगी होगी। तो जो जीतता है तस्करा, हुसैन जीते इसलिए हुसैन का तस्करा हो रहा है, शहीद आ रहा उसका तस्करा कोई करने वाला नहीं। यह है फातिहा में हुसैन। खुदा आपको सलामत रखे और दुआ मानेंगे और उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करिए जिसने आपको हमें हुसैन के लाजवाब दौलत दे दी है। और सलाम करिए गुलवालदैन की पाक और पाकीज़ा आगोश पर जिसने आपको इस लायक बना दिया है, इसलिए हमें हुसैन की तारीफ कीजिए। और इसी के साथ ये भी दुआ करिए, खुदा हमें सच्चा आज़मदार बना दे, सच्चा आज़मदार बना दे, जो मकसद अदा है हम उसे पूरी कर दे। इस आज़ादारी के जरिए, इस मजलिस के जरिए, इस शब्दारी के लिए हम वहां तक पहुंच जाए जहां तक इनकलाब हुसैनी हमें ले जाना चाहता है। तब ये आज़ादारी है, तब ये हक है। खुदा सलामत रखे तुम रोने वालों को, क्योंकि तुम ज़हरा की दुआ हो, ज़हरा की तमन्ना हो। अल्लाहु अकबर, क्या दौर था, क्या दौर है, तारीख शाहिद है। आज हम खुली फजा में आज़ादारी मना रहे हैं और शुक्र करते हैं अपने उस पाक पाकीज़ा वतन हिंदुस्तान पर कि जहां हमने सांसें ली हैं, जिस वक्त जहां चाहिए मुल्क में आज़ादारी मारे। कि भारत तन्हा मुल्क है पूरी दुनिया में कि जहां आज़ाद हुसैन मनाने पर सरकारी कोई पाबंदी नहीं लगी, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि यहाँ के हिंदू आज़ादार थे, यहाँ के राजा महाराजा आज़ादार थे, जहाँ के सुन्नी आज़ादार हैं, और भी वो नस्लें कायम हैं जो सिलसिला आज़ादारी जिनके यहाँ कायम है। यह है हिंदुस्तान की जमीन, जहाँ का जिस असर है, जहाँ का हिंदू भी आज़ादार। क्योंकि आप देखिए मन्नतें मानने के लिए अल्लाहु अकबर, बंगाल में जो दुलदुल उठता है तो दूध बहा दिया जाता है, उस दुलदुल के नीचे बहा देते। हम आप नहीं बहाते, ये बंगाल की गैर मुस्लिम औरतें बहाती है, क्योंकि उन्हें मौला से मिले हैं, मौला से अकीदत है, मौला से मोहब्बत है, जो साहिब के बाहर साथ हुसैन की है कि जिससे हर कौम का लगाव लगा है, तर्जीमान होता है, जिसका एहतराम किया जाता है, जिसका कम मनाना। क्योंकि हुसैन वो है कि कोई हुसैन के सर से खाली लौटा नहीं है, जिसने जो मांगा दे दिया। कल बचपना था हुसैन का तो बिदरुस ने बालू पर मांगा दे दिया, राहिब ने फसल मांगा दे दिया, करबला में आए भूर को जन्नत माने दी। आज भी मानने वालों की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि आज भी हुसैन का दर सखावत खुला है। जो मांग रहा है हुसैन उसे देते जा रहे हैं, जो मांग रहा है हुसैन उसे देते जा रहे हैं। इंसान उसी के पास जाता है ना कि जहाँ से कुछ मिलता है, उसके दर पर क्यों जाएगा जहाँ से खाद भी न मिले। उसे तो नाम पर कोई भीख भी नहीं लेते है।
तो ऐसे पत्थर पर नहीं जाते जहाँ पर इंसान जाते हैं। बस अदा डालो, मैं बोल चुका, वक्त ज्यादा हो चुका है। हमारे मजलिस भी होना चाहिए। आज 11वीं मुहर्रम है, कयामत की तारीख है। कल शाम गरीबा थी 10 आवाज 11वीं। एक शब्द में बड़ा फर्क नजर आया। कुछ आपने एहसास किया कि शाम गरीबा में और 11वीं मुहर्रम की सहर में क्या फर्क नजर आया? फर्क इतना नजर आया कि कल चादर लुटी थी, आज बाजुओं में रसन बंधे। कल सकीना का गला आजाद था, आज रसन से झगड़ा। ये फर्क हुआ आपको से नहीं? कल लंबरदार अब्बास थे, आज ज़ैनब बनी हुई। याद रखिए कि अगर हुसैन न होते तो इस्लाम मिट जाता, और अगर ज़ैनब न होती तो आज पैगाम हुसैन ही न होता। याद रखिए, हुसैन जिसे करबला में लाए थे कुछ सोच समझ करके लाए थे। अगर करबला का तमाम हो जाती तो हुसैन किसी को न लाते। मगर करबला को तमाम अभी नहीं होता है। करबला को तमाम कभी बड़ा लंबा तूलानी सफर है, जिस सफर के लिए ज़ैनब ऐसी पहली दरकार है। ज़ैनब बताएगी शहादत का मकसद क्या है। शहादत पर ज़ैनब बताएगी कि शहादत हुसैन क्यों हुआ, किसने मेरे भाई को मेहमान बुलाया था, किसने कत्ल किया था, कौन कातिल है, ये ज़ैनब बताएगी। और याद रखिए अरबाब ऐसा, ये मजलिस ज़ैनब का सदका है। अगर आज ज़ैनब न होती तो मजलिस यहाँ तक न आती। पहली मजलिस ज़ैनब ने दरबार शाम में यजीद के घर में ये फैसला कर दिया करके, ये यजीद तेरे दरबार में ज़ैनब अपने भाई का सफेद मातम बिछा के ये बता रही है कि जब तू जिक्र हुसैन नहीं रोक सकता तो तुझे कयामत तक दुनिया का कोई यजीद जिक्र हुसैन नहीं रोक सकता। रुका हुसैन ने हिम्मत थी कि रोक लेता ज़ैनब को। जवाब हुसैन ना मनाओ, बल्कि जो ज़ैनब कह रही गई थी सर बेटो सारे शहदा गए। कल तमाशा देखने की बीबियां लिबास मातमी में ज़ैनब को पुरसा दे रही है। ये रसन बस्ता बीबी खातून ज़ैनब का इनकलाब है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए आंसू को रोका जाता है, इसीलिए मातम को रोका जाता है। ज़ैनब ने अपने आंसुओं के जरिए वो आग लगा दी जो आग कुछ न पाई, यजीदी महजर के साथ हो गया। अल्लाह अकबर। और बाद आगा ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब का कारनामा। 11वीं मुहर्रम, क़यामत की तारीख, मज़ालिम की इंतहा। आप जानते हैं कि बीबियां किधर से ले जा रही? तसव्वुर करिएगा, साहिबाने औलाद का मजमा है। हमारे यहाँ का दस्तूर ये होता है, अगर किसी का जवान बेटा गुजर जाए या शौहर जाए तो हम उसकी माँ को उसकी कब्र पर ले जाते घबराते, और अगर जाते हैं तो लोग सहारा देने वाले रहते, माँ का दिल है कब्र देख के तड़प जाए। अब इंसाफ से कहिएगा, जब लाइना ने अली अकबर का लाशा धूप में देखा तो माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। तुमने फरमाने कासिम की पामाल मैयत बेकफन देखी होगी। अरे जब सकीना ने बुरा के किनारे शता के बाजू कलम देखे होंगे तो बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या तारीफ। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब और मोहम्मद की मैयतें बीवियां देख रही। अब रबाब अली अकबर का तो लाशा न देख सकी, मगर एक लंबी सी कब्र का नीचे से जरूर लगाए हुए। मेरे दोस्त के पाले मेरे चांद अली अकबर, मेरी दूध भी नुरान हो गई। जो तसल्ली के लिए झूला था वो झूला भी जल गया। खुदा किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए जो हमारे और आपके इमाम चौथे इमाम मंजर देख रहे हैं। जवान बेटा
जंजीरों में जकड़ा हुआ, सामने बाबा की लाश पड़ी है और कफनों कफन नहीं, क्या चित्र गुजरी सैयद सज्जाद की। तो यही वजह थी, एक बड़े चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। ज़ैनब आगे बढ़ती कहती है, सज्जाद अपने को संभालो, ये मेरे लाल अभी लावारिसों का कौन है, अब इन यतीमों का कौन है, रोने वालों रो लो, या जुमला का है। याद रखिए, ये न समझिए आप तन्हा है, इसी जुलूस में मादर हुसैन है, आपके साथ साथ आपकी आंखों के सामने उसका रुमाल है। मेरे लाल पे रोने वालों, अपने आंखों को मेरे रुमाल में दो, मैं बाबा की खिदमत में जन्नत में इसे ले जाती हूँ। आप जन्नत में बाद में जाइएगा, आप तो पहले आपके पहुंच जाते हैं। मसूले चंद जुमले पर कहते हैं, भूखी अम्मा आप देख रही हैं अपने पुश्ताए नजीब को